This The conference will now be. behaviors of this is related to the behaviors of the consumer regarding the modern trade store switching. Modern trade stores, what are modern trade stores? They are the the grocery stores which are currently being used by the consumers, and they visit those modern trade stores. For instance, you have Imtiaz, Nahid, Hyperstar, Chase, and so many others. So there's a booming trend as well. This research was done in I think 2014, and but the questionnaire is very simple and easy to understand. And this questionnaire is actually focusing on to the impact of price and in-store services and convenience, store environment, and the decision of a consumer to switch the store. Okay, so these are the basic things that are being taken care by this survey questionnaire. Apart from that, you have some demographic questions and screening question. For instance, you have two demographic question. You can incorporate more demographics as well. And you have two screening questions, which is the store preference and how long you've been purchasing from the modern trade outlet. Okay. So if I see this questionnaire, so it has four questions, which are actually categorical or nominal questions, and we have almost 15 questions which are scale questions. I'm sure that if you have an orientation of research, you must be knowing the difference between three types of scales which are widely used in the research. First is the nominal scale, second is the ordinal scale, and third is the interval or ratio scale. Interval and ratio scale को combinedly हम scale कहते हैं, ठीक है? Coming up to the nominal questions are those which are based on categories. For instance, yes, no based, brackets of the age, gender, some preferences. For instance, what sort of beverage do you like? I like fizzy drink, I like natural drink, I like water. So in this case, you have categories. So when you have categories, these type of questions are termed as nominal questions. Okay. Then after nominal questions, we have uh, another questions which is basically the ordinal question. There is no ordinal question here, but if I want to incorporate an ordinal question, for instance, I can put up here, okay, rank your favorite store. So I may list down here 5 stores and I can ask you to rank them. So now you're going to rank 1, 2, 3, 4, 5, or maybe 1, 2, 3 based on your preference to that store. Okay, based on your liking, based on your own perception कि सबसे अच्छा कौन सा है. So those type of questions are termed as ordinal. Okay. After ordinal questions, we have scale questions. Scale questions में दो तरह के आते हैं. एक आपके पास interval based होता है. Interval based means जैसे Likert scale है, strongly agree to disagree का, rate on 1 to 10 है, to what extent you are motivated, rate on 1 to 7. तो ये सारे जो आपके पास to what extent you may agree or disagree, or you to what extent you are satisfied or dissatisfied, comes under the interval scales. Okay. And another scale is the ratio scale. Ratio scale is actually the open-ended numerical question. For instance, if I want to ask your CGPA, and if I ask you to give me the actual value, so that actual value becomes a scale. Okay, it's not a category because I'm not giving you any range. फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको रेंज दे दूं कि मेरी जीपीए 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4, 4 to 5 इस तरह से है, तो वो आपकी कैटेगरी बेस्ड यानी नॉमिनल क्वेश्चन बन जाएगा. लेकिन अगर मैं आपको एक ओपन एंडेड न्यूमेरिकल आंसर दे देती हूँ कि आपने इसमें एक्चुअल वैल्यू लिख देनी है, तो देन इन दैट केस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वुड कन्वर्ट इनटू अ रेशियो बेस्ड क्वेश्चन और रेशियो स्केल्स. ओके, and they are also termed as scale in SPSS or in the terms of statistics. Now, the question is that once we have our questionnaire ready, what are we supposed to do and how we are going to transfer this questionnaire into SPSS? Please remember that the questionnaire transferring to SPSS does not just happen in one go. You need to make certain codings. Okay, you have to develop codings in order to transfer the questionnaire to SPSS. Remember one thing very clearly, that SPSS does not work on textual data. It's not Excel that it can perform some functionalities on text as well. It is statistics software, and statistics means numbers, numerical values. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे क्वेश्चनर के अंदर हमारे पास टेक्स्ट भी है, क्योंकि हमारे पास मेल और फीमेल इज अ टेक्स्ट. So if they select male or if they select female, so it's a text that we have to write down.
So similarly, if I say store preference, so if there are 4 stores, Nahid, Imtiaz, Hyperstar, and then let's say if I have Shays as well. So in this case, SPSS would never understand what is Nahid, what is Imtiaz, what is Shays, what are Hyperstar. All that they understand is the numbers. Okay, so before transferring the questionnaire into the SPSS, you have to understand that the questionnaire has to be coded. So you have to perform some coding before transferring into the software. Okay, so now when we are talking about the code, we need to understand the question and the responses that we are getting in the question. For instance, if I talk about the first question, age, if you see the first question, age, so I have 3 categories here: 18 to 24, 25 to 30, 31 and above. Okay, now these 3 categories cannot be entered into SPSS. I cannot write down 18-24 because SPSS will not recognize it. Instead, if I say that 24 is equals to 1, if I code it, okay, coding means you assign a number to it. Coding simply means assign a number to each answer so that SPSS can count those numbers rather than the text. For example, if I want to know how many people belonging to 18 to 24 in my data, so SPSS will count all ones and tell me how many ones are there. Okay, because it cannot count the text, but it can count all the numbers. So please be very careful when you are dealing with the SPSS and the questionnaire, that you have to code the data. You have to code the categories that you have taken, you have to code them. So if I say 18 to 24 equals to 1, if I say 25 to 30 is equals to 2, if I say 31 and above is equals to 3, so now SPSS will count all the ones, all the twos, all the threes, and it will tell me how much data belongs to 18 to 24, how much data belongs to 25 to 30, and how much data belongs to 31 and above. Okay. Similar goes for gender. If I say male is equals to 1 and female is equals to 2, so it will exactly tell me how many ones and how many twos. So that means how many males are there and how many females are there. So we need to perform this coding before creating any file in SPSS, because if we are not making these codes, then we are going to jeopardize the whole idea of transferring the data into statistical software. Okay. सो लेट्स क्विकली मेक द कोड्स. अच्छा, कोड के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नंबरिंग क्या लें. आप मेल को 2 ले सकते हैं, फीमेल को 1 दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, मगर आपको अपनी कोड्स को याद रखना है. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल दैट यू रिमेंबर योर कोड्स. सो लेट्स से इफ आई से नाहिद इज इक्वल्स टू 1, इम्तियाज इज इक्वल्स टू 2, hyperstar is equals to 3, and I think if I'm not wrong, the data has fourth one as well, which is chase, जो आई डोंट नो इस क्वेश्चन में शायद क्यों मिसिंग है. लेकिन अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख दूं कि चेज, अगर यहाँ पे कोई लिख देता है तो चेज इज इक्वल्स टू 4. Similarly, 1 to 3 months is equals to 1, 4 to 6 months is equals to 2, 1 year is equals to 3, and more than 1 year is equals to 4. ठीक है. So we have performed the coding for each of the question. Now coming up to strongly disagree to strongly agree. It has been recommended in the research that you should always go from ascending to descending in a scale with disagreement to agreement. Okay. A lot of times students are reversing the scale. For instance, they make strongly agree as 1 and strongly disagree as 5, even though it won't matter much. I'm not saying it will create any difference. लेकिन एक नॉर्म होता है, एक रूल होता है स्टैटिस्टिक्स का. रूल के अंदर ये है कि यूजुअली इट इज प्रेफर्ड दैट द हायर साइड should have the agreement value, or let's say a positive side. For instance, if I say dissatisfied to highly satisfied, and if it's a scale of 1 to 7, so I will give 1 to a lower value, I would give 1 to a disagreement, and I would give higher value to an agreement. ठीक है, तो ये एक नॉर्म फॉलो होता है. आप लोग प्लीज इस नॉर्म का ख्याल रखें ताकि इट मेक सेंस. सो आई एम गोइंग टू से स्ट्रांगली डिसएग्री एज 1, disagree as 2, neutral as 3, agree as 4, and strongly agree as 5. So this is the coding that I've performed. तो अब अगर कोई प्राइस के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 पे टिक लगाता है तो उसका 5 एंटर होगा. कोई प्राइस के सेकंड क्वेश्चन के अंदर 3 पे टिक लगाता है तो उसका 3 एंटर होगा. न्यूट्रल पे टिक लगाता है तो 3 एंटर होगा. ठीक है. So this is how we are going to code our questionnaire. So our whole questionnaire is coded. अगर इसके अंदर और सवालात हैं तो प्लीज आप उसको कोडिंग कर लें. अगर नहीं है तो you may continue with the development of
SPSS फाइल, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम SPSS फाइल के ऊपर आ जाएं, एंड इन योर लैपटॉप्स यू मे स्टार्ट अ न्यू फाइल. Okay, as soon as you start a new file, let me stop sharing the questionnaire, and let me share the SPSS screen. Okay. Hello, ma'am. Aisha Yeah, here. yeah, Um, yeah, Aisha. yeah. So, since you hope you're doing good, since you know that I'm Yeah, also yeah, working Alhamdulillah. on my research, तो मैम जो Likert scale है वो हमने तो ordinal लिया है because everywhere on the Google and tutorial वहाँ पे ordinal था. No, And no. Likert scale is no. It's never ordinal. Even if it is ordinal, they are not, giving you the right understanding. देखो, never use Google or YouTube for your answers. You must always refer to the authentic writers. For instance, if you refer to Uma Sikran, she's the one of the major author of statistics books. If you refer to RP Byrne, if you refer to Black Hair Andrew Babin, if you refer to there's another one, Saunders, if you refer to Zickman, all of these are on the consensus that scales are the interval scales. Likert scale is a scale. Look at the word Likert scale. So how can it be an ordinal? yeah, Ordinal is ranking. Okay. इन ऑर्डिनल यू डू नॉट अग्री और डिसएग्री टू एन एक्सटेंट. ऑर्डिनल के अंदर आपका आंसर फिक्स होता है, ठीक है. अगर मैं जैसे एक रेस की बात करूं, फॉर इंस्टेंस एक रेस हो रही है, ठीक है, उसमें 4 खिलाड़ी हैं. मैं चारों खिलाड़ियों को एक एक नंबर एलोकेट कर देती हूँ, तो ये नॉमिनल नंबरिंग हुई, बिकॉज उसमें कोई 1 2 नहीं है. उसमें बस खिलाड़ी के हो सकता है कि उसकी एंट्री के ऊपर या उसके नेम के उसके ऊपर उसको नंबर असाइन कर दिया गया, खिलाड़ी नंबर 1, खिलाड़ी नंबर 2, खिलाड़ी नंबर 3, खिलाड़ी नंबर 4, राइट. अब जब वो भागता है, तो वो रेस में जब जीत जाता है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि टू व्हाट एक्सटेंट आई वुड से ही इज अ विनर. आई एम नॉट गोइंग टू से दैट. आई वुड स्ट्रेट अवे एलोकेट अ नंबर कि ये जीत गया है, तो ही इज नंबर 1. नाउ चौथा खिलाड़ी भी पहला हो सकता है, दूसरा खिलाड़ी भी पहला हो सकता है, तो एक फिक्स नंबर उसको एलोकेट हो गया है. कोई स्केल बेस्ड एलोकेशन नहीं हुई है कि हम ये कहते हैं कि सम व्हाट ही इज अ विनर. वी कैन नॉट से दैट. समझ आ रही बात? So that is why जी it's a मैम. ranking is ordinal. It's a fixed number. But when we come up to scale, we are actually saying that to what extent we are agreeing or we are satisfied, we are dissatisfied. So when we say to what extent, we are not giving a fixed answer. We are somewhere in between the agreement or disagreement. हाँ, कभी कभार हमारे बिल्कुल फिक्स भी हो सकते हैं, we strongly agree, we strongly disagree. But then sometimes we are not very comfortable with 1 or with 10. So we may lie somewhere between 8, 8.5, 9, 2.5, 3.6, 3.7, right? So we are not allocating a fixed number. So how it can be an ordinal? Ordinal means rank. So when we are saying that to somewhat we are agreeing or disagreeing, it's a scale, because we are showing our consensus on a question to a certain level. And when we say it's a certain level, it's actually a scale of level. Okay. Okay, ma'am. And So ordinal is for something ordinal is ranking. you are absolutely sure or concrete about कि मैंने इसको फर्स्ट कर दिया या इसको सेकंड कर दिया. बिल्कुल, हाँ, और आपके पास बिल्कुल फिक्स नंबर्स होते हैं. ऑर्डिनल के ऊपर कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होती. ऑर्डिनल पे सिर्फ मोड कैलकुलेट होता है, ठीक है. मगर लाइकर्ट स्केल्स के ऊपर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं. आप इसके ऊपर मीन मोड मीडियन निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट कर सकते हैं, टी टेस्ट कर सकते हैं. यू कैन परफॉर्म रिग्रेशन कोरिलेशंस. तो जब आप रिग्रेशन कोरिलेशन पे आ रहे हैं, तो इट मींस दीज आर द स्केल बेस्ड वैल्यूज, ठीक है. वो Please, and I would always recommend to the students, please जब भी आप लोग पढ़ा करें research से related, please refer to the books, because Google and YouTube provide you a lot of information which is not according or relevant to the book. They're not aligned. When you open the books, then you are seeing a different world. ठीक है. तो हमेशा बुक्स के लिए जरूर ऑप्ट करें. और मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पर आप लोगों से ही कहूंगी कि उमा सिकरान इज अ वेरी वेरी बेसिक एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग कंटेंट शी हैज डेवलप्ड. बहुत इजी इंग्लिश है, बहुत समझ में आने वाली चीजें, बहुत आसान है. और जिस तरह से उसने समझाया है रिसर्च की चीजों को, आई थिंक दैट एज अ बिगनर you should carry that book when you are doing your research. ठीक है.
अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू दी SPSS, आई एम श्योर दिस विंडो इज बीइंग विजिबल टू यू. अच्छा, इस विंडो के अंदर अगर आप देखें तो इस विंडो के अंदर जब भी आप SPSS पे काम करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दो व्यूज हैं. एक डेटा व्यू है, एक वेरिएबल व्यू है. सो यू हैव टू व्यूज दैट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन. सो इफ यू are generating the questionnaire or you are transferring the questionnaire into SPSS, you are going to work on the variable view first. So when you are going to enter into variable view, you can see that there are few columns listed right in front of you. I'm not going to discuss every column because every column is not your concern. When you are at the beginners level, even if you are moving ahead and you're doing your research at PhD level, not every field requires your attention. So please do not गेट कंफ्यूज कि इसमें क्या आएगा, इसमें इसको कुछ करना है. हर एक चीज को चेंज करने की, एडिट करने की या उसके अंदर कोई वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो दैट्स वी आर गोइंग टू डू टुडे. लेट्स लुक इनटू द डेवलपमेंट ऑफ द क्वेश्चनर इनटू SPSS. ठीक है. अच्छा, अब अगर आप अपने सामने SPSS की फाइल भी खोल लें तो आप मुझे साथ साथ फॉलो करते रहिएगा. क्वेश्चनर अगर आप देखें तो क्वेश्चनर में हमारे पास जो सबसे पहला सवाल है वो है एज का. ठीक है. अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आप सबसे पहले SPSS के अंदर अपने जो क्वेश्चंस हैं उनकी लिस्ट, ये जो नेम वाला कॉलम है इसके अंदर बना लें. ठीक है. तो आपके पास पहला क्वेश्चन है एज. ठीक है. आपके पास सेकंड क्वेश्चन है जेंडर. आपके पास थर्ड क्वेश्चन है. अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा कि ये जो नेम का कॉलम है, इस कॉलम के अंदर आप जो भी यहाँ पे वर्ड या मल्टीपल वर्ड्स एलोकेट करेंगे उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए अदर देन द अंडरस्कोर. स्पेस नहीं आनी चाहिए, डॉट्स नहीं आने चाहिए, बिकॉज SPSS विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग दैट हैज स्पेशल कैरेक्टर. नेम कोशिश कीजिएगा कि छोटा सा हो. ठीक है. और कोशिश कीजिएगा उसके अंदर अंडरस्कोर अगर आपने लगाना है लगा लें, लेकिन ये कि बहुत सारे कीवर्ड्स मत रखिएगा. ठीक है. So like for the first question, I've only used the word age. Second question, I've only used the word gender. If I see the third question, it is IMT store preference. So I can simply write down here store preference. Okay, this is sufficient. Then the next question is how long you've been purchasing. So I may say purchase time. I may call it purchase time. See, I have not given any space. I have taken care of the separation of the two words using the capital letter. Okay. तो आप चाहें तो उसके बीच में अंडरस्कोर भी लगा सकती हैं. अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास प्राइस का क्वेश्चन है. प्राइस के दो सवाल आते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्राइस P1 कह देते हैं हम इसको, एंड देन वी कैन कॉल इट P2. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव 1 2 3 4 questions for service. So we can say S1, S2, S3, S4. Okay, 4 questions are done for service. Done. Then we have convenience. See, we have 1 2 3 3 questions for convenience. So we may write down C1, C2, C3. Then we have 2 questions for store environment. So already we have used S. ठीक है. अब वेरिएबल्स के जो नाम होते हैं यहाँ पे जो नेम्स है वो रिपीट नहीं हो सकते, तो आप यहाँ पे SE1 कर दें rather than going for S1 again. So we have SE1 and SE2. So we have 2 questions related to store environment. Yes. Then store switching, we have 1 2 3 4. So here we are going to make store switching. So I can say SW, SW1, SW2, SW3 and SW4. ठीक है जी. तो ये अब आपका क्वेश्चन रेडी हो गया. अच्छा, अब हम आ जाते हैं बाकी कॉलम्स, वो तमाम कॉलम्स जिनको आपको टेक केयर करना है. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस दोस कॉलम्स वन बाय वन. ऑलराइट, इफ आई गो बैक टू दिस SPSS, देखिए हमने यहाँ पर जो सवालात बनाए हैं, अब अगर आप अपने क्वेश्चनर पे वापस आ जाएं तो मैंने आपसे कुछ कोडिंग करवाई थी. अगर आप इन कोड्स को देखें तो इन कोड्स के अंदर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके अंदर डेसिमल वैल्यूज आ रही हैं. ठीक है. सपोज करो कि CGPA का सवाल होता तो CGPA के अंदर डेसिमल प्लेसेस आती हैं. सपोज करें कि मिड टर्म मार्क्स हैं तो मिड टर्म मार्क्स के अंदर डेसिमल प्लेसेस आते हैं. मगर इस वक्त हमारे पास जितने भी सवाल आते हैं उसमें कोई सवाल ऐसा नहीं है कि जिसमें डेसिमल प्लेसेस आ रहे हो. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास
ये जो वेरिएबल्स बने हुए हैं, ये जो हमने नेम्स बनाए हैं, इन नेम्स के आगे आप देखिए टाइप को छोड़ दें, टाइप शुड बी न्यूमेरिक, लीव इट. विड्थ को छोड़ दें, विड्थ इज नॉट योर कंसर्न. डेसिमल्स के अंदर दिस शुड बी 0 बिकॉज नन ऑफ द वैल्यूज आर टेकिंग एनी डेसिमल. अगर सपोज करें यहाँ पे कोई सवाल सीजीपीए, मिड टर्म के मार्क्स, या लेट सपोज आप कितने पैसे लगाते हैं हर साल ग्रोसरी पे, एक अमाउंट बताएं और आपको लगता है कि उसमें डेसिमल प्लेसेस आ सकते हैं, तो आप डेसिमल प्लेसेस रखें, वरना इन डेसिमल प्लेसेस को आप 0 कर दें. ठीक है, अब आपने तमाम डेसिमल प्लेसेस को 1 by 1 0 करना है. अच्छा, अब आप कहेंगे कि मिस 1 by 1 0 करना ठीक है, 10-15 सवालात के लिए आसान है, मगर अगर आपके पास यहाँ पे 84 सवालात हों तो 84 सवालात के लिए इंडिविजुअली 0 करना बहुत मुश्किल है. अब आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कैसे कर रही हूँ. अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखिए आपने एक दफा 0 लिख दिया, ठीक है, लिख दिया एक दफा 0. Once you have written the 0, now just take your cursor, listen to me very carefully, okay, just take your cursor on top of this value 0. अब आपने लेफ्ट क्लिक नहीं दबाना, देखिए लेफ्ट क्लिक दबाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, आपने लेफ्ट क्लिक नहीं दबाना, आपने कर्सर लाके दबाना है राइट क्लिक. जैसे ही आप राइट क्लिक दबा के लीव करेंगे, आपके पास ये कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा. आप इस कॉपी के ऑप्शन को लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट कर लें. कर लिया. अब उसके नीचे जितना भी आपके पास डेटा है उन सबको राइट क्लिक से आप हाईलाइट करेंगे. प्लीज लेफ्ट से हाईलाइट मत कीजिएगा. यू हैव टू सेलेक्ट दिस डेटा यूजिंग द राइट क्लिक, एंड एज सून एज यू विल लीव द राइट क्लिक, it will give a pop-up menu which will ask you to paste. तो अब आपके तमाम जीरोस जो हैं वो ऊपर से लेकर नीचे तक पेस्ट हो गए. ठीक है जी. So now these decimal values are 0. We are comfortable. Fine. अच्छा, उसके बाद आपके पास है लेबल का कॉलम. अगेन लेबल का कॉलम इज ऑप्शनल. ये कॉलम यूज क्यों होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ. देखिए कई दफा ये होता है कि आपके पास ये जो नेम्स लिखे हुए हैं, ये नेम्स डिपिक्ट नहीं कर पा रहे कि ये वेरिएबल्स क्या हैं, ये क्या सवाल आता है. ठीक है, अब चलो एज पता चल गया, जेंडर ओके, स्टोर प्रेफरेंस फाइन, परचेज टाइम ओके, बट व्हाट इज P1, व्हाट इज P2, आई हैव नो आइडिया. व्हाट इज S1, S2, S3, S4, आई हैव नो आइडिया. बिकॉज अगर सपोज करो कि इस क्वेश्चनर की फाइल को मैं आज से 2 साल बाद खोलती हूँ, तो मुझे तो याद भी नहीं आएगा कि यार ये P1 P2 क्या था, अगर मेरे पास क्वेश्चनर ना हो तो. तो ये जो लेबल है ये आपको हेल्प करता है कि आप हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं एज अ रिमाइंडर दैट व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. फॉर इंस्टेंस, सिंस दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्राइस, सो आई कैन राइट डाउन हियर प्राइस. ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू प्राइस, आई कैन राइट डाउन हियर प्राइस. और अगर आप प्राइस नहीं लिखना चाहते, फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पर इसके जो स्टेटमेंट है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं क्वेश्चनर पे जाऊं तो इसकी स्टेटमेंट कह रही है प्रमोशनल ऑफर्स हैव ऑलवेज अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स द ब्रांडेड ग्रोसरी स्टोर. तो आप यहाँ पे प्रमोशनल ऑफर्स स्टोर इन स्टोर भी लिख सकते हैं. तो यू कैन यूज 3 कीवर्ड्स एज वेल इन ऑर्डर टू रिमाइंड योरसेल्फ व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. ठीक है, लेबल यूज करना ना करना आपकी चॉइस है, आपकी कन्वेंशन है, कोई जरूरी नहीं है कि लेबल को यूज किया जाए. यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते. आपको लगता है आपको यहाँ लिखना चाहिए तो आप 3-4 कीवर्ड्स की मदद से आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. ठीक है, बट देन इट्स योर चॉइस. कमिंग अप टू द वैल्यू, नाउ दिस कॉलम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. देखिए अभी हमने 3 कॉलम्स को डिस्कस किया है जो आपने जरूर करने हैं. सबसे पहले आपका नेम का कॉलम, फिर आपका डेसिमल का कॉलम, फिर अब आ जाते हैं हम आपका वैल्यूज का कॉलम. ये जो वैल्यूज का कॉलम है, ये कॉलम एक्चुअली आपने एसपीएसएस को ये बताना है कि देखिए आपने कोडिंग की है. ठीक है, आपने हर सवाल को एक कोड असाइन कर दिया, आपने एज की 3 कैटेगरीज को कोड दे दिए, आपने जेंडर की 2 कैटेगरीज को कोड दे दिए, आपने स्ट्रांगली अग्री डिसएग्री को कोड दे दिए. फाइन, मगर अब जो आपने कोडिंग की है आप एसपीएसएस को भी बता दें कि आपकी कोडिंग का मतलब क्या है. फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर सेइंग 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1? इफ यू से 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2? ताकि जब एसपीएसएस आपके आउटपुट्स को जनरेट करेगा तो वो इन कोड्स को नहीं बताएगा, बल्कि वो आपकी उन वैल्यूज को लिख के देगा जिनको आपने असाइन किया हुआ है. फॉर इंस्टेंस, अगर आपने 1 मेल को असाइन किया है तो वो रिजल्ट के अंदर 1 नहीं लिखेगा, मेल लिखेगा, बिकॉज उसको ये पता है कि आपने कोडिंग कैसे की है. तो एक्चुअली ये कॉलम बड़ा क्रिटिकल होता है बिकॉज दिस कॉलम एक्चुअली डिस्कसेस योर कोड्स कि आपकी कोडिंग का मतलब क्या है. ठीक है, आपने जितने भी कोड्स बनाए उन तमाम कोड्स का क्या मतलब है. तो अगर हम यहाँ पर अपनी कोडिंग को एंटर करना चाहें तो as soon as you click here, there are going to appear 3 dots. Click onto these 3 dots and it will ask you 2 very important things. The first thing, it will ask you the value,
एंड द सेकंड थिंग इट विल आस्क यू द लेबल, ठीक है। अच्छा, वैल्यू के अंदर आपने क्या लिखना है? वैल्यू के अंदर आपने वो लिखना है जो आपने कोड असाइन किया है अपनी कैटेगरी को। फॉर इंस्टेंस इफ आई राइट डाउन हियर 1, और एज के अंदर जो पहली कैटेगरी है वो है 18 to 24, ठीक है। तो मैंने 1 असाइन किया है किसको? मैंने 1 असाइन किया है 18 to 24 को, ऐड कर दें। फिर मैंने 2 किसको असाइन किया है? मैंने 2 असाइन किया है जी 25 to 30 को, ऐड कर दें। फिर मैंने 3 असाइन किया है 31 एंड above. So these are the 3 codes and I have told SPSS कि देखिए मेरे पास 3 कैटेगरीज है, उन 3 कैटेगरीज का मतलब 1 का मतलब है 18 to 24 है, 2 का मतलब है 25 to 30 and 3 का मतलब है 31 and above. So now I have made these categories and you can press OK. So this is actually the value, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं, बाकी सारों को आप छोड़ दें, अब आप आ जाए मेजर पे। मेजर पे प्लीज ऑलवेज मेंशन कि इस क्वेश्चन का मेजरमेंट क्या है। राइट नाउ एज आई सेड ऑल द कैटेगोरिकल क्वेश्चंस कम अंडर नॉमिनल। अभी इस वक्त हमारे पास 2 ही तरह के सवालात हैं, या तो हमारे पास नॉमिनल है या हमारे पास स्केल है। तो जो शुरू के 4 सवालात हैं वो नॉमिनल है और बाकी के जो 15 सवालात हैं वो आपके पास स्केल बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 जल्दी जल्दी इनकी वैल्यूज बना लेते हैं। अब हम जेंडर पे आ जाते हैं। अगेन हम वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। वैल्यू 1 जो है दैट इज मेल एंड वैल्यू 2 जो है वो आपके पास है फीमेल। देन अगेन इट विल बी नॉमिनल। स्टोर प्रेफरेंस पे आ जाए। अब आपके पास 1 इज इक्वल्स टू नाहिद, 2 इज इक्वल्स टू इम्तियाज, 3 इज इक्वल्स टू हाइपर स्टार एंड एज सेड कि शायद इसमें फोर्थ का जो मैंने आपको डेटा भेजा है शायद इसके अंदर फोर्थ भी है, तो मैं यहाँ डाल देती हूँ, कोई मसला नहीं है। चेज डन एंड दिस इज अगेन nominal. Then the purchase time, we have 4 categories in the purchase time. 1 is equals to 1 to 3 months, 2 is equals to 4 to 6 months, 3 is equals to 1 year and 4 is equals to more than a year. Add कर दिया? Okay. Again, this is nominal. All right. Now I am stopping till here. I am giving you 1 minute. अगर आपके पास इसके यहाँ तक कोई सवाल है तो प्लीज आप मुझसे कर सकते हैं before I start the coding of scale based questions. किसी का भी कोई सवाल है तो प्लीज आप या तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें या बता दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। हाँ जी Ma'am, this is Ahad. Ma'am, I had a question that are we going to discuss correlation and regression in this session? I will try, but I don't know in 1.5 hours I'll be able to cover everything or not. I don't know. Let's see. Okay, ma'am. Okay. If not, then I'll have a question for it. I'll discuss it later to you. No problem. ठीक है. Okay, Anybody thank else? you. Anything else? यहाँ तक कोई सवाल है इसके अलावा? Ma'am, one more question. हाँ हाँ. Ma'am, this is sir. Ma'am, ordinal scale और nominal जो strongly agree और disagree होता है उसके लिए हम nominal ordinal scale use करते हैं या scale Scale use measure करेंगे. Scale use करेंगे because ordinal is ranking. Ordinal means rank. Ordinal is a fixed value, fixed rank that you assign to any category. ठीक है? Scale means that to what extent you agree or disagree about something. ठीक है? Okay, ma'am. Thank you. Thank you. All right. Okay, now let's begin with the rest of the questions. अब आपके पास P1 से लेकर SW4 तक 15 सवालात हैं, ठीक है? अच्छा, अब आप जरा देख लें, यहाँ पर हम P1 की वैल्यू कैटेगरी बना रहे हैं। वैल्यू कैटेगरी में हम आ गए। वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 is equals to disagree, 3 is equals to neutral, 4 is equals to agree, and 5 is equals to strongly agree. Okay, just to save time, I'm not typing everything. I'm just using the initials of those categories. आपने categories बना, आपने ये scale बना दिया, values बता दी, okay कर दिया, ठीक है? और आपने इसको यहाँ पे scale भी बना दिया। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपके पास strongly agree disagree है, this is going to repeat 14 more times, ठीक है? और अगर ज्यादा सवालात हैं तो शायद
30-40 दफा भी आप इसको रिपीट कर रहे होंगे. तो अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दीज वैल्यूज कैन ऑल्सो बी कॉपीड. हाउ टू कॉपी दीज वैल्यूज? लुक एट द स्क्रीन. आपने अपने कर्सर को लाना है वैल्यूज के ऊपर, जहां पे 1 इज इक्वल्स टू स्ट्रांगली डिसएग्री वाली जो वैल्यूज लिखी हुई नजर आ रही हैं, आपने कर्सर को उसके ऊपर लेकर आए. प्लीज लिसन. क्लिक ऑन द राइट, नॉट ऑन द लेफ्ट. क्लिक ऑन द राइट, आपके पास कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा. आ गया. अब आपने क्या करना है कि उसके नीचे जितनी भी वैल्यूज है उनको आप सिलेक्ट कर लें. जहां पे नन लिखा हुआ है उनको आप राइट क्लिक से सिलेक्ट करेंगे. राइट क्लिक से सिलेक्ट करेंगे. जैसे ही आप राइट क्लिक छोड़ेंगे सिलेक्शन करके, आपके पास पेस्ट का ऑप्शन आएगा, आप उसको पेस्ट कर दें. तो तमाम सेक्शंस के अंदर, आपके तमाम क्वेश्चंस के अंदर स्ट्रांगली डिसएग्री टू अग्री का स्केल कॉपी पेस्ट हो जाएगा. ठीक है. बिल्कुल इसी तरह से अगर आप मेजर वाला कॉलम में आए तो आपके पास स्केल लिखा हुआ है. अब आप इंडिविजुअली सबके स्केल जाके सिलेक्ट करें. आप स्केल जो लिखा हुआ है उसके ऊपर कर्सर लेकर आए. प्रिसाइसली कीप द कर्सर ऑन टॉप ऑफ द स्केल वर्ड. राइट क्लिक, कॉपी. राइट क्लिक से सिलेक्शन करें. एज सुन एज यू विल लीव द राइट क्लिक, यू कैन पेस्ट इट. सो ऑल स्केल्स आर कॉपीड हियर. ठीक है. तो अब आपके पास आपका जो क्वेश्चनर है SPSS में वो रेडी है, एंड योर क्वेश्चनर इज फुली ट्रांसफर्ड onto the software. Any questions so far? Please ask. Otherwise, we'll move on to the data insertions. कोई सवाल है? Ma'am, I have a question for us here. Madam, number 8 है negative statement. तो उसका भी same here होगा. Question number 8 में negative statement है. I will not switch back traditional groceries. हाँ. Question number 8. I will not switch back to traditional grocery because of convenience and comfort. हाँ, बिल्कुल. अच्छा, अगर ये क्वेश्चन रिवर्स है तो रिवर्स क्वेश्चंस को हम बाद में ट्रीट करते हैं. उस वक्त ट्रीट मत करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप डेटा एंट्री कर रहे होते हैं तो आप इतनी स्पीड में होते हैं कि अचानक से वैल्यू को चेंज करना एंड देन रिमेंबरिंग कि यहाँ पे स्केल चेंज करना है, तो वो मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप एंट्री के टाइम पे कोई भी चेंज मत करें. ठीक है. आप डेटा को पहले एंटर कर ले एज इट इज, एंड देन how you can treat the reverse question, that I'll tell you in a while. ठीक है. Just keep your question. I will tell you about handling reverse question. But first, data entry should be normal. Data entry के टाइम के ऊपर आप कोई भी सवाल को रिवर्स ट्रीट ना करें. ये मेरा रिकमेंडेशन है. और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम जब स्पीड में काम कर रहे होते हैं और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सपोज करें 400-500 सवालात हैं, तो 400-500 सवालात को याद रखना कि यार इसका हर बार क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 जो है वो रिवर्स होगा, तो वो यूजुअली आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है. तो आप उस वक्त उसको स्पीड में एंटर कर लें और बाद में उसको ट्रीट कर लें. तो मैं आपको उसकी ट्रीटमेंट बता दूंगी. ठीक है. अच्छा जी, अभी हम आ जाते हैं. सो राइट नाउ इट विल स्टे द सेम. कोई सवाल है यहाँ पर अभी तक? अच्छा, अब हम आ जाते हैं. Once you have done with the variable view, please switch to data view. As soon as you'll come up to data view, you would see that all of these वेरिएबल नेम्स आर नाउ हेडर्स. ये तमाम हेडर्स पे आ गए हैं और ये जो रोज आपके पास अवेलेबल है, ये तमाम रोज जो है वो आपके एक्चुअली डेटा इंसर्शन के लिए है. ठीक है. नाउ यू कैन इंसर्ट द डेटा हियर. अच्छा, अब आपने डेटा को इंसर्ट कैसे करना है? सपोज करें कि आपके पास ये क्वेश्चनर फिल हुआ हुआ है, मेरे पास ये क्वेश्चनर फिल हुआ हुआ है. तो अगर मैं खुद इस क्वेश्चनर को फिल करूं, फॉर इंस्टेंस, सो आई एम गोइंग टू टिक ऑन टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ द एज विच इज 31 एंड अबव. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3. If I say gender, I'm going to enter 2. If I say store preference, so I'm going to enter 2 because I prefer Imtiaz. And if I say purchase time, so I've been purchasing for more than a year. Then price 1. So if I say strongly disagree or strongly agree, so I may say 5. Then let's say in store service का जो मैंने आंसर किया है वो किया है 4. Then 3. Then 4. 2, 1, 3. इस तरह से करके आपके पास एक पूरे रिस्पोंडेंट का जो रिस्पॉन्स है वो इस फर्स्ट कॉलम में सेव हो जाएगा. तो अब आपके पास जितने भी रिस्पॉन्सेज आते जा रहे हैं वो आप यहां पर सेव कर सकते हैं. सही है. अगर आप लोगों को SPSS चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा. मैं अपने ड्राइव का लिंक शेयर कर लूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है. अच्छा जी, coming back to the data entry, so this is how you can enter the data. जरा सा प्लीज अगर आप लोग देख लें एक नजर डेटा एंट्री को और मुझे बता दें कि क्या आपको डेटा एंट्री समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है. कैन यू एंटर द डेटा ऑफ द क्वेश्चनर और नॉट? ओके. अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा. देखिए, अभी
बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन क्वेश्चनर्स फिलअप करवाते हैं। जब आप ऑनलाइन क्वेश्चनर्स फिलअप करते हैं तो आपके पास जो डेटा ऑनलाइन स्प्रेडशीट्स में आ रहा होता है, फॉर इंस्टेंस गूगल फॉर्म से जो मेरे पास डेटा आता है, वो यूजुअली टेक्सचुअल होता है। वो स्ट्रांगली अग्री लिख के देगा, 5 नहीं लिख के देगा, स्ट्रांगली डिसएग्री लिख के देगा, 4 नहीं 1 नहीं लिख के देगा। तो प्लीज ये बात याद रखिएगा कि आप एक्सेल से डेटा कॉपी करके एसपीएसएस में पेस्ट कर तो सकते हैं, मगर जो टेक्सचुअल डेटा है वो उसको कन्वर्ट नहीं करेगा। एसपीएसएस ये नहीं आइडेंटिफाई करेगा कि जिसने स्ट्रांगली अग्री लाके पेस्ट किया तो इसका मतलब 5 है, वो 5 नहीं काउंट करेगा। ठीक है, आपने कोडिंग करके कॉपी पेस्ट करना है। एक्सेल के अंदर अगर आपके पास गूगल डॉक्स से कोई भी चीज डाउनलोड हो रही है तो आपने वही एक्सेल की फाइल के अंदर ही कोडिंग करनी है, और कोडिंग करने के बाद आप डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर कोडिंग करने के 2 तरीके हैं। आप इफ एनालिसिस, आप इफ देन एल्स को यूज कर सकते हैं। इफ की जो आपके पास फंक्शन होता है उसको यूज करके कोडिंग कर ले, बहुत जल्दी हो जाती है। और बेस्ट इज वी लुकअप, आप वी लुकअप भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज अगर जिन लोगों ने वी लुकअप सीखा हुआ है तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि वी लुकअप से, जो वी लुकअप या एच लुकअप से कोडिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो आपका अगर 700-800 का भी डेटा है तो इन 1 क्लिक आप पूरी कोडिंग एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो वी लुकअप के लिए आप रहीम से कंसल्ट कीजिएगा, वो आपको सिखा देंगे। और वरना इंशाल्लाह पॉसिबल हुआ तो मैं एक छोटी सी वीडियो भी आपके लिए शेयर कर दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा कि हाउ टू अप्लाई वी लुकअप एंड कोड द डेटा इन एक्सेल। मगर एक्सेल से आप टेक्सचुअल डेटा कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। हाँ जी मैम, हम लोग एक्सेल में फाइंड एंड रिप्लेस करके फिर तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना एसपीएसएस में? फाइंड एंड, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस यूज कर सकते हैं। यस Have I made myself clear? Yes, ma'am. अब हम आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं तक है, This strongly conference agreed, will now be recorded. and you can see the data view that the data is entered in the numbers. ठीक है, तो आपके पास 100 responses हैं and you have all this data available. अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि जब भी आपके पास इधर डेटा अवेलेबल है तो आपने किस किस तरह के एनालिसिस को परफॉर्म करना है। ठीक है, लेट्स डिस्कस द एनालिसिस आइडिया क्विकली। What sort of analysis you can perform whenever you are with the questionnaire data? Please remember always कि आपने किसी भी एनालिसिस को शुरू करने से पहले आपने रिलायबिलिटी टेस्टिंग करनी है, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी स्टैब्लिश नहीं होती तो इन दैट केस आपको डेटा शायद दोबारा कलेक्ट करना पड़े, या हो सकता है कि क्वेश्चनर चेंज करना पड़े। तो अब आप आधी से ज्यादा एनालिसिस कर लें, फिर आप रिलायबिलिटीज पे आए तो आपको पता चले कि यार रिलायबिलिटी स्टैब्लिश नहीं हुई, तो आपका जितना भी एनालिसिस परफॉर्म हुआ होगा वो सारा एनालिसिस जो है इट विल गो इन वेन, बिकॉज योर रिलायबिलिटीज आर नॉट स्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो रिलायबिलिटी स्टैब्लिश करना इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनालिसिस। प्लीज डू नॉट डेविएट फ्रॉम दिस एवर। फर्स्ट थिंग, डेटा इंसर्ट करते ही आपने सबसे पहले रिलायबिलिटी टेस्ट करनी है। ठीक है, रिलीजियस स्टेप है आपका एक रिसर्चर का। सो गो टू एनालाइज, स्केल एंड रिलायबिलिटी एनालिसिस। आपके पास अगेन लेट मी शो इट टू यू, एनालाइज। If you can share your screen, please. Oh, it's not sharing? I'm so sorry. I didn't notice that it's not okay. Is it visible now? All right. Yes. So analyze, scale and reliability. ठीक है, click onto reliability analysis, and as soon as you click onto reliability analysis, आप यहां पर सिर्फ उन सवालात को सिलेक्ट करेंगे जो आपके स्केल बेस्ड क्वेश्चंस थे।
तमाम सवालात नहीं जाएंगे, डेमोग्राफिक वाले सवालात नहीं जाएंगे, नॉमिनल ऑर्डिनल इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा. Liability analysis only work for interval and scale ratio scale data. तो आपके पास यहाँ पे Q1 से लेकर Q15 तक तमाम सवालात आपके जो स्केल बेस्ड हैं, इंटरवल स्केल्स हैं. So now you can perform your reliability analysis. So what you're going to do is you're going to select Q1 से लेकर Q15 तक, add them into a new window जो आपके पास आइटम्स की विंडो है. आप यहाँ पर लिखें ओवरऑल, लेबल आपके पास एक गिवन है तो आप लिख दें ओवरऑल reliability and then press OK. अच्छा, as soon as you will press OK, आपके पास एक आउटपुट की फाइल खुलेगी. ठीक है, let me share this output screen with you. ये आपके पास एक आउटपुट की फाइल खुलेगी. अच्छा, दो चीजें याद रखिएगा. अक्सर स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि आउटपुट फाइल और एसपीएसएस फाइल में क्या डिफरेंस है. ये दोनों अलग अलग फाइल्स हैं, एक ही सॉफ्टवेयर है मगर दो अलग अलग फाइल्स हैं. अगर आप आउटपुट की फाइल को सेव करेंगे तो डेटा सेव नहीं होगा, डेटा की फाइल को सेव करेंगे तो आउटपुट सेव नहीं होगा. लेकिन डेटा होगा तो आउटपुट कभी भी जनरेट हो सकता है, मगर अगर आउटपुट की फाइल होगी तो डेटा आपके पास खुद ब खुद उसके साथ अटैच नहीं होगा. सो प्लीज रिमेंबर दैट दीज टू फाइल्स आर टू. आपको आउटपुट नजर आ रहा है, मगर अगर कभी भी आपको आउटपुट सेव करना है तो आउटपुट की फाइल आप अलग से सेव करेंगे. ठीक है. अच्छा, अब हम आ जाते हैं रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर. अगर आप देखें तो रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के अंदर या क्वेश्चन बोले. यस, रिलायबिलिटी के लिए मिनिमम कितने क्वेश्चनर्स होने चाहिए? ओके, रिलायबिलिटी एनालिसिस के लिए मिनिमम आपके पास 20 होने चाहिए. थैंक यू. ठीक है, पहले टेस्टिंग के लिए आपके पास 20 होने चाहिए. और अगर आपका क्वेश्चनर बहुत बड़ा है, सपोज करें कि आपको क्वेश्चनर के अंदर 100 से ज्यादा सवाल आते हैं, मैम साइमा, we can't hear you. then go 50 above. ठीक है, बट अगर जैसे ये क्वेश्चन है छोटा सा है तो 35 क्वेश्चंस है तो 20-25 काफी हैं. लेकिन अगर आपके पास वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप एमएस लेवल का क्वेश्चन है, इट हैज ऑलमोस्ट 60-70 क्वेश्चंस फॉर इंस्टेंस. हाँ, हेलो. यस, आपकी आवाज बहुत ज्यादा am I ब्रेक हो रही है. audible? यस यस. Oh, I'm okay. Now am I audible? Yes, audible. Okay, that's wonderful. All right, coming back to the reliability value. So right now the reliability value is 0.798. Please always remember that the reliability value has to be above 0.6. Simon, we can't hear you. Disturbance. Bachelor 6 MS PhD लेवल पे 0.7. ठीक है, और Et tu parles aussi, tu ne le mets pas le machin à...
should be greater than 0.6. And always remember that if it is less than 0.6, अगर 0.58 भी है तो भी आपको इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है. ठीक है. रिजॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं इस वक्त सिर्फ आपके साथ एक ही शेयर कर पाऊंगी. फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये अस्यूम कर लूँ फिलहाल कि ये 0.79 नहीं है बल्कि ये 0.59 है, फॉर इंस्टेंस कि ये 0.59 है. ठीक है. तो नाउ हाउ कैन आई इंश्योर कि ये 0.59 अगर है तो 0.6 से ऊपर जा भी सकता है या नहीं जा सकता? क्या मेरे डेटा के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आई कैन ब्रिंग इट अप टू 0.7 और 0.6? हाउ कैन आई चेक दैट? ठीक है. So in this case, if you please come back to the SPSS. Let me share that window again. So this is SPSS view. You can go to Analyze, Scale, Reliability Analysis. And in this, you have one button of a statistic. If you can please see that. Reliability Analysis के अंदर आपके पास एक बटन है Statistics का. अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आता है स्केल इफ आइटम डिलीटेड. इसको चेक लगा दें. जस्ट चेक दिस बटन एंड देन कंटिन्यू. एज सुन एज यू चेक दिस बटन एंड प्रेस ओके, और जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो इट विल जनरेट एन आउटपुट, एंड इन दिस आउटपुट यू विल सी 2 tables, नॉट ओनली 1 बट यू विल सी 2 tables. ओके. ओके, कैन यू सी 2 tables? रिलायबिलिटी टेबल आपके पास एक आ रहा है जिसमें 0.798 लिखा हुआ है, और उसके नीचे एक आपके पास क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 15 तक का एक टेबल आ रहा है. ठीक है. अब इस टेबल को पढ़ना कैसे है ये मैं आपको सिखाती हूँ. ठीक है. इस टेबल के अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो SPSS दे रहा है. कौन सी इंफॉर्मेशन है? आपके पास पहला जो कॉलम है, जो नीचे जो टेबल बना हुआ है, उसके पहले कॉलम के अंदर तमाम क्वेश्चन लिस्टेड है, और सबसे आखिरी कॉलम अगर आप देखें तो उसके अंदर क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यूज लिस्टेड है. आपने बस यही 2 कॉलम्स को पढ़ना है, बीच के 3 कॉलम्स को आपने नहीं गो थ्रू करना. दे आर नॉट कंसर्न राइट नाउ. पहला कॉलम है Q1 से लेकर Q15 तक का, दूसरा कॉलम है क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यूज का. ठीक है. अच्छा, अब अगर हम ये अज्यूम करते हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो क्रॉनबेक अल्फा है वो 0.59 है, 0.79 नहीं है. ठीक है. अब हमने इसको इम्प्रूव करना है. इम्प्रूव करने के लिए जब हम टेबल बनाएंगे तो अब आप इस टेबल में जो राइट मोस्ट कॉलम है जहां पे क्रॉनबेक अल्फाज लिखे हुए हैं, विच इज एक्चुअली योर 1 2 3 4 5 फिफ्थ कॉलम, इस फिफ्थ कॉलम के अंदर आप 1 बाय 1 वैल्यू चेक करते जाएं कि क्या कोई वैल्यू ऐसी है जो 0.6 के ऊपर जा रही हो, क्या कोई वैल्यू ऐसी है जो इंप्रूव हो रही हो. फॉर इंस्टेंस अगर आप Q8 पर आए तो आपको नजर आएगा कि क्रॉनबेक अल्फा बहुत अच्छा इंप्रूव हो रहा है. इट इज 0.843 राइट नाउ. ये एग्जिस्टिंग क्रॉनबेक अल्फा से भी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है. कैन यू सी दैट? तो इसका मतलब क्या है? हाउ विल आई इंटरप्रेट दिस अंडर दिस वैल्यू? ये जो 0.843 लिखा हुआ है ये एक्चुअली ये बता रहा है कि अगर इस पूरे रिलायबिलिटी में से क्वेश्चन नंबर 8 को डिलीट कर दिया जाए तो आपकी रिलायबिलिटी 0.843 हो जाएगी. अगेन लिसन टू मी. अगर आपने रिलायबिलिटी को 0.843 करना है तो आप Q8 को अपने एनालिसिस से डिलीट कर दें. जब आप Q8 को अपने एनालिसिस से डिलीट कर देंगे तो आपकी रिलायबिलिटी 0.843 तक आ जाएगी. इस टेबल को ऐसे पढ़ा जाएगा. तो अब आपने ये असेस करना है कि क्या आपके तमाम सवालात की प्रेजेंस रिलायबिलिटी को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है. But if it's above 0.6, that means it's the most reliable. तो इसको हम कैसे डिलीट कर रहे हैं? अगर अब नहीं तो ये है ही स्केल इफ आइटम डिलीटेड. इट इज नॉट मोस्ट रिलायबल. इट सेज स्केल इफ आइटम डिलीटेड. इसका मतलब ये है कि अगर इस आइटम को डिलीट कर दिया जाए तो रिलायबिलिटी कितनी हो जाएगी. ऑलराइट, समझ आई? तो मैं Q8 को डिलीट कर दूंगी तो रिलायबिलिटी 0.843 हो जाएगी. इस टेबल को उल्टा पढ़ना है. ये टेबल सपोर्टिव नहीं है. ये टेबल एक्चुअली उस क्वेश्चन को किक आउट करने के लिए आपको रास्ता दिखा रहा है. ठीक है. यस, थैंक यू. ऑलराइट. अच्छा, ये एक तरीका है रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने का. मगर अगर इससे रिलायबिलिटीज इम्प्रूव ना हो तो आप फिर दोबारा डेटा कलेक्ट करेंगे या फिर अपना क्वेश्चनर चेंज करेंगे. ठीक है. देयर आर अदर वेज, लेकिन मैंने यूजुअली देखा है कि जब क्रॉनबेक अल्फा एस्टैब्लिश नहीं होता
तो दूसरे वेज भी आपको बहुत सपोर्टिव आंसर्स नहीं देते. इन माई ओपिनियन आई हैव ऑलमोस्ट सुपरवाइज मोर देन 300 रिसर्चेस. मैंने ये देखा है कि अगर क्रॉनबेक अल्फा एस्टेब्लिश नहीं होता तो आप जितने भी तरीकों से इसको इम्प्रूव कर लें, ये इम्प्रूवमेंट नहीं आती. ठीक है, हो सकता है 0.59 से 0.6 के अबव चला जाए, मगर अगर 0.4 आ रहा है, 0.2 आ रहा है, 0.1 आ रहा है या माइनस में रिलायबिलिटीज आ रही है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. फिर यू आर स्टक, यू हैव टू कलेक्ट द डेटा अगेन. ठीक है, अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का डेटा आया, उसकी रिलायबिलिटी 0.54 थी, किसी भी क्वेश्चन को हटाने से भी रिलायबिलिटी इंप्रूव नहीं हो रही थी. तो इन दैट केस शी हैड टू कलेक्ट द डेटा अगेन. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर यू मूव ऑन टू एनी एनालिसिस. आपने पहला स्टेप हर हाल में उठाना है कि आपने रिलायबिलिटी टेस्टिंग करनी है, क्योंकि रिलायबिलिटीज अगर स्टैब्लिश नहीं हो रही तो इन दैट केस यू विल नॉट कंटिन्यू विद द डेटा एनालिसिस, यू विल रिकलेक्ट द डेटा. मगर अगर रिलायबिलिटी स्टैब्लिश हो जाती है और एक आध कोई सवाल डिलीट हो जाता है तो प्लीज गो अहेड, डिलीट दैट क्वेश्चन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके एनालिसिस पे. तो मैम अगर हमारी क्वेश्चनर में हाँ यूजुअली जो है वो यही प्रैक्टिस रहती है कि आप जो है डेटा कलेक्शन से पहले ही ट्रायल बेसिस के ऊपर 10-15 क्वेश्चनर्स पे रिलायबिलिटी टेस्ट कर लें ताकि बाद में आपको तकलीफ ना हो. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. हाँ जी, there was another So for person. example, if we have 15 questions in our questionnaire, और अगर उसमें से भी हम लोग 3-4 हटा देते हैं, so that means 11 नहीं questions. So is that fine? No, it's not fine. Deleting one may be okay. Out of 15, deleting one is okay. ठीक है, डिलीशन 1%, मतलब 1 या 2% तक तो ठीक है, मगर इतनी डिलीशन हो जाए कि आपका आधा क्वेश्चनरी चला जाए तो इसका मतलब फिर आपका डेटा अनस्टेबल है. ठीक है, एक आध सवाल डिलीट होता है, नो बिग डील. बट इफ यू आर डिलीटिंग, लेट्स से यू हैव ओनली 10 क्वेश्चंस एंड यू आर डिलीटिंग 1, सो इट मींस आपने 10% तो डिलीट कर दिया ना. ठीक है, तो डिलीशन भी आपको इंटेलिजिबल करनी पड़ेगी. कितने होने चाहिए पर क्वेश्चनर? देखो, एक्चुअली हम इसका सवाल इस तरह से नहीं जवाब दे सकते, क्योंकि हम स्केल्स को अडॉप्ट करते हैं. मैं कभी भी स्टूडेंट्स को रेकमेंड नहीं करती कि आप स्केल खुद बनाएं, बिकॉज खुद बनाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. स्केल डेवलपमेंट इज इन इटसेल्फ अ रिसर्च. ठीक है, स्केल डेवलपमेंट के ऊपर पूरे रिसर्च पेपर्स लिख लिए जाते हैं. तो जब आप स्केल को अडॉप्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर एक्चुअली बाउंड टू फॉलो द लिटरेचर. अगर लिटरेचर कहता है, फॉर इंस्टेंस मेरे पास 4 वेरिएबल है, ब्रांड इक्विटी है, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट है, और 3 वेरिएबल्स में ब्रांड इक्विटी के 12 सवाल है लिटरेचर में, प्रोडक्ट प्लेसमेंट के 5 सवाल आते हैं, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के 9 सवाल आते हैं, तो आई एम बाउंड टू पिक ऑल द क्वेश्चंस. आई कैन नॉट पिक एंड चूज कि मैं एक सवाल उठाऊं और मैं दूसरा सवाल ना उठाऊं. तो इसलिए हम इसको कभी ये नहीं कह सकते कि एक क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन होने चाहिए, 20. आपके वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है. हाँ, आप ये सवाल कर सकते हो कि एक रिसर्च में कितने वेरिएबल्स होने चाहिए. ठीक है जी मैम. ओके, एनी अदर क्वेश्चन सो फार? इज द रिलायबिलिटी एनालिसिस क्लियर? रिलायबिलिटीज को फर्दर पढ़ने के लिए उमा सिकरान की से अच्छी कोई बुक नहीं है. बिजनेस रिसर्च मेथड्स की बुक है उमा सिकरान की. उमा, UMA, उमा, SEKERAN. प्लीज उमा सिकरान की बुक को जरूर अपने पास रखें. ये बुक सबसे अच्छी बुक है रिसर्च के लिए. कभी भी आप बिगनर लेवल पे फंसेंगे, आप इस किताब को खोलें, आपको कहीं ना कहीं से जवाब मिल जाएगा. ठीक है, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर रिलायबिलिटी टेस्टिंग. अच्छा, अब आपकी चूंकि रिलायबिलिटी स्टैब्लिश हो चुकी है, तो जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास होता है रिलायबिलिटी का, रिलायबिलिटी के बाद का, वो है आपके पास demographic analysis. How do we perform the demographic analysis? In order to perform the demographic analysis, you are going to go to analyze, and in analyze you have descriptive statistics, and in descriptives you have frequencies. Analyze, descriptives, and frequencies. If you click to frequencies, so it will take you to this box, and in this box you will only select the nominal questions. अगर आपके पास कोई ordinal भी हो तो आप इसमें select कर सकते हैं. Age, gender, store preference, and shop duration. So you have 4 questions related to the frequencies. Click them into the variable box. अच्छा, इसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ चार्ट्स का ऑप्शन है. आप चार्ट्स बना सकते हैं. अगर आप यहाँ पे देखें तो दूसरा जो बटन है वो चार्ट्स का है.
तो अगर आपको बार चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए तो आप बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पर चाहिए या परसेंटेज पर चाहिए आप ये भी बता सकते हैं। राइट नाउ 100 का डेटा है तो फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज बराबर होगा। अगर 300 का डेटा होगा तो फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज अलग अलग होगी। तो आप परसेंटेज पे बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पे बना सकते हैं। कंटिन्यू करें। और आप इसके अलावा अगर आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, जो भी चाहिए हो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। Since I'm not teaching statistics right now, so I cannot get into the details of quartile, percentile, minimum, maximum, range, mean, mode, median. आप इन सबको खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको एज अ रिसर्चर कभी भी इनकी वैल्यूज जनरेट करनी हो तो दिस इज द बॉक्स, स्टैटिस्टिक इज द बॉक्स। ठीक है। राइट नाउ हमने स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि हमें किसी भी चीज की फिलहाल जरूरत नहीं है। चार्ट्स में हमने बार चार्ट ले लिए हैं, कंटिन्यू कर दिया है। इसके अलावा ना हमने फॉर्मेट सेलेक्ट किया ना हमने बूटस्ट्रैप सेलेक्ट किया, कोई भी चीज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। We are only going to generate the frequencies for nominal scales. ठीक है। तो आपके पास यहाँ नॉमिनल डेटा का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो जनरेट हो जाएगा। आप ओके प्रेस कर दें। अच्छा जी, जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे आपके पास अनदर आउटपुट की विंडो खुल जाएगी। उसी आउटपुट की विंडो के अंदर ही वो आपको 4 टेबल्स लिस्ट करके देगा और 4 बार चार्ट्स बना के दे देगा। ठीक है। लेट मी शेयर द स्क्रीन सो यू कैन सी इट। और अगर आपने अपने पास बनाया है तो दैट वुड बी वंडरफुल। अच्छा, अब मैं आपको इस टेबल को पढ़ना सिखा देती हूँ। देखें, सबसे पहले आपके पास टेबल है स्टैटिस्टिक का। इस टेबल को जरूर एक नजर देखिएगा कि कहीं कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं रह गई, आपने कोई गलत वैल्यू तो नहीं टाइप कर दी, कोई मिस तो नहीं कर दी वैल्यू कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में। तो आपको ये बता देगा कि क्या किसी कॉलम के अंदर मिसिंग वैल्यू है या नहीं है। हमारे पास यहाँ 0 मिसिंग वैल्यूज है, दैट मीन्स वी हैव नो मिसिंग वैल्यूज इन आवर डेटा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ एज रिस्पोंडेंट। इसमें आपके पास 3 कॉलम इंपॉर्टेंट है। पहला कॉलम आपके पास जहां पर कैटेगरीज लिखी हुई है, दूसरा कॉलम जिसमें फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है और तीसरा कॉलम जिसमें परसेंटेज लिखा हुआ है। इस वक्त फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज बराबर इसलिए है क्योंकि 100 का ही डेटा है। अगर सपोज करो ये 200 का डेटा होता तो फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज अलग अलग होता। ठीक है। तो इस वक्त आप फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज दोनों में से कोई एक कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास जो इस पूरे टेबल में से इंपॉर्टेंट कॉलम्स है दैट इज द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। अब इसको पढ़ना कैसे, इंटरप्रेट कैसे करना है, वेरी इजी। यू कैन सी दैट द मेजर age group in your data is 18 to 24. That means 71% people belongs to 18-24 and rest of 71% and rest of the 29% are 25 and above. ठीक है। तो आप इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। Similarly, if we go down to gender, we can see 47% females, 47% males and 53% females. Similarly, store preference, we can see that more people prefer Hyperstar, followed by इम्तियाज and then नाहिद and चेज अप। ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि आपके जो मेजर बायर्स हैं वो हाइपरस्टार से बिलोंग कर रहे हैं या फिर इम्तियाज से बिलोंग कर रहे हैं। शॉपिंग ड्यूरेशन, सिंस आवर डेटा इज स्ट्रॉन्ग, व्हाई? बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट 55% हु आर परचेजिंग फॉर मोर देन अ ईयर। ठीक है। एक अच्छा आपके पास चंक है ऐसा, क्योंकि आप इनके डेटा के ऊपर रिलाई कर सकते हैं क्योंकि ये 1 साल से ज्यादा परचेजिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 55%। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास ये चार्ट्स बन गए हैं। आप चाहें तो इन चार्ट्स को कॉपी पेस्ट करके वर्ड के ऊपर ला सकते हैं। तो ये चार्ट्स भी आपको डिपिक्शन दे देंगे आपकी डेमोग्राफिक वैल्यूज की। चार्ट्स के लिए यूजुअली मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप एक्सेल यूज करें, क्योंकि एक्सेल के अंदर चार्ट्स बहुत खूबसूरत बनते हैं, बड़ी अच्छी उसकी फॉर्मेटिंग हो जाती है। SPSS के जो चार्ट्स होते हैं वो कुछ ऐसे ही नजर आते हैं, आप इनकी ज्यादा फॉर्मेटिंग्स वगैरह नहीं कर सकते, बट for the purpose of, for the sake of research, they are pretty okay. और credibility establish करने के लिए कि आपने वाकई काम SPSS में किया है तो आप इस चार्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। So the second stage after the reliability analysis is the demographic interpretations. इसके अंदर कोई सवाल है तो प्लीज आप मुझसे कर सकते हैं। Any issue in demographic analysis? No, that's well explained. Thank you. ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, आपके पास आगे है
once the reliability analysis is done, once the demographic analysis is done, अब हम आते हैं आपके hypothesis testing के ऊपर, ठीक है? अच्छा, hypothesis testing, how do we perform hypothesis testing? देखो, hypothesis testing के अंदर beginner level के ऊपर आपके पास दो चीजें होती है जिनको हम mainly perform कर रहे होते हैं. या तो हमारे पास कोरिलेशंस होते हैं या रिग्रेशन. मुझे नहीं लगता मैं रिग्रेशन को कवर कर पाऊंगी. रिग्रेशन को आप उमर सिकरान की बुक से पढ़ लीजिएगा, मगर मैं आपको कोरिलेशन सिखा सकती हूँ, ठीक है? अच्छा, अगर हम रिग्रेशन और कोरिलेशन की बात करते हैं, तो अब हमने जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है वो हमें इन 15 सवालात को इस्तेमाल करते हुए करनी है, ठीक है? लेट मी शेयर द SPSS स्क्रीन बैक टू यू. Okay. All right. Just give me a second. Okay, I'm sorry. Coming back to the screen, can you see the SPSS screen? अच्छा, इस SPSS स्क्रीन के अंदर अब हमारे पास ये 15 सवालात हैं जिनसे हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है. इन 15 सवालात की हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो आपके पास टास्क है वो ये टास्क है कि आपके पास हर वेरिएबल के लिए एक से ज्यादा सवाल है, ठीक है? सबसे पहली बात हमेशा रिसर्च में याद रखिएगा कि नेवर अडॉप्ट अ क्वेश्चनर that has only one statement per variable. It is never ideal. It is never the right thing because it generates a lot of error. आपके पास एक वेरिएबल के मल्टीपल आइटम्स होना जरूरी है, ठीक है? तभी ही आपका जो एरर है वो रिड्यूस होता है एंड यू गेट गुड रिजल्ट्स, ठीक है? तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस के आपके पास 2 सवालात हैं, सर्विस के आपके पास 4 सवालात हैं, कन्वीनियंस के आपके पास 3 सवालात हैं, स्टोर एनवायरनमेंट के 2 हैं और स्टोर स्विचिंग के 4 सवालात हैं, ठीक है? अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब आपने इन सवालात को कंबाइन करना है. प्राइस के अगर 2 सवालात हैं तो मेरे पास मैं दोनों सवालात को अलग अलग ट्रीट नहीं करूंगी, बल्कि मैं दोनों सवालात को कंबाइनली ट्रीट करूंगी. इन दोनों सवालात को कंबाइन करने का तरीका क्या है कि हम समेटेड स्केल जनरेट करते हैं. समेटेड स्केल, SUMMATED, समेटेड स्केल. समेटेड स्केल बनाने का तरीका क्या है कि आप इनके रिस्पॉन्सेस को एवरेज कर दें. फॉर इंस्टेंस, मेरे पास 100 रिस्पोंडेंट्स के रिस्पॉन्सेज हैं प्राइस के दोनों सवालात के. आई हैव आंसर्स फॉर क्वेश्चन 1 एंड आई हैव आंसर्स फॉर क्वेश्चन 2. तो अगर मैं ये करूं कि रिस्पोंडेंट 1 ने जो क्वेश्चन 1 का आंसर दिया है और रिस्पोंडेंट 1 ने जो क्वेश्चन 2 का आंसर दिया है, मैं उन दोनों वैल्यूज को एवरेज कर दूं तो मेरे पास रिस्पोंडेंट 1 का प्राइस से रिलेटेड एवरेज आंसर आ जाएगा, ठीक है? हाउ वुड आई एवरेज देम? आप देखें, अगर आप यहाँ पर SPSS के डेटा में देखें तो Q1 और Q2 के 2 कॉलम्स हैं. Q1 के अंदर जो पहला रिस्पोंडेंट है उसने कहा 4 और Q2 के अंदर उसने कहा 4. तो अगर 4 और 4 को मैं एवरेज आउट करूं तो आंसर वुड बी 4. तो अब आपके पास Q1 और Q2 को कंबाइन करके आप एक नया वेरिएबल फॉर्म करेंगे और उस वेरिएबल के अंदर आपने समेटेड स्केल बनाना है प्राइस का. Summated scale are always developed through averaging the values. Averaging the values. Now, how do we average the values of Q1 and Q2? We have to go to transform, compute variable, and in this compute variable, we type, अच्छा, इस compute variable के अंदर आपने क्या करना है? Again, see transform, compute variable, इसमें सबसे पहले target variable का नाम लिखना है. आपने यहाँ पे लिख दिया price. जैसे आपने यहाँ प्राइस लिखा, अब आपके पास, अच्छा, इस टारगेट वेरिएबल के नाम में कोई स्पेस, कोई अंडरस्कोर मत दीजिएगा प्लीज, ठीक है? अंडरस्कोर अलाउड है मगर स्पेसेस अलाउड नहीं है. अच्छा, अब आपने प्राइस लिख दिया. अब आप यहाँ पर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में लिखें एवरेज का फंक्शन. किस तरह से आप लिखेंगे? ब्रैकेट ओपन, आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे Q1 प्लस Q2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2. Q1 प्लस Q2, इसका मतलब रिस्पोंडेंट 1 का, तमाम रिस्पोंडेंट्स का Q1 और Q2 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो
तो आपके पास हर रिस्पोंडेंट की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी प्राइस के वेरिएबल से रिलेटेड। आप जैसे ही इसको ओके करेंगे तो अब आप ये देखेंगे कि आपका जो SPSS का डेटा है उसके बिल्कुल आखिर में एक प्राइस का वेरिएबल जनरेट हुआ होगा जिसमें तमाम रिस्पोंडेंट्स की एवरेज वैल्यू आपकी नजर के सामने होगी। सो नाउ दिस इज द जनरेशन ऑफ प्राइस वेरिएबल। ठीक है। In a similar manner, you can generate the variable of service. So you have 3, 4, 5, 6. ये 4 सवालात हैं सर्विस से रिलेटेड। अब हम दोबारा से कंप्यूट कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल। अब आप सर्विस की प्राइस की जगह लिखेंगे सर्विस, और आप यहां पर दोबारा से एक्सप्रेशन लिखेंगे। नाउ वी हैव 4 क्वेश्चंस, Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4। प्लीज डिवाइड बाय 4 करना मत भूलिएगा। Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 डिवाइडेड बाय 4। सो ये सर्विस वेरिएबल जनरेट हो जाएगा आपके पास। आप इसको ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे, आप SPSS के डेटा में आखिर में देखेंगे कॉलम के अंदर आपके पास एवरेज वैल्यूज ऑफ सर्विसेज जनरेट हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल सिमिलर मैनर में आपके पास कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस है 7, 8, 9, 3 आपके पास क्वेश्चंस हैं। अच्छा, कन्वीनियंस के अंदर प्रॉब्लम यह है कि एक सवाल है जो है रिवर्स है। ठीक है। जब मैंने आपको रिवर्स क्वेश्चन समझाया था तो मैंने आपसे कहा था कि डेटा आप एंटर कर दें। ठीक है, डेटा जाने दें, हम इसको बाद में रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने का तरीका क्या होता है? इस वक्त हम समेटेड स्केल में Q8 को एज इट इज यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सवाल डिसएग्रीमेंट के साथ बना हुआ है। वो सवाल अग्रीमेंट ऑफ द कॉन्स्ट्रक्ट के साथ नहीं बना हुआ, डिसएग्रीमेंट ऑफ द कॉन्स्ट्रक्ट के साथ बना हुआ है। तो अब आपने उस क्वेश्चन को रिवर्स करना है। रिवर्स करने का तरीका क्या है कि आप जाएं ट्रांसफॉर्म के अंदर, कंप्यूट के अंदर आप लेट सपोज मैं लिखूं यहां पे Q8 रिवर्स R लिख दो। Q8 R का मतलब ये है कि ये रिवर्स हो गया है। रिवर्स कैसे होगा? देखो, अगर आपके पास कभी भी हमेशा याद रखो कि अगर स्केल 1 to 5 का है तो रिवर्स करने के लिए आपको 6 में से माइनस करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग सवाल को, यानी 6 माइनस Q8। अगर आपके पास स्केल 7 का हो तो 8 माइनस Q8। अगर स्केल आपके पास 10 का हो तो 11 माइनस Q8। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को रिवर्स कर देगा। इस वक्त हमारे पास स्केल है 1 to 5 का, लाइकर्ट स्केल है। तो आप लाइकर्ट स्केल को कैसे रिवर्स करोगे? 6 माइनस Q8। तो ये Q8 R एक जनरेट हो जाएगा। आप जैसे ही आप ओके करेंगे, आपको SPSS के डेटा में एक Q8 R बना हुआ नजर आएगा, एंड दिस इज द रिवर्स ऑफ Q8। तो अगर आप प्लीज थोड़ा सा Q8 को देखें तो यहाँ पे 2 है, उसने 4 कर दिया, 3 को 3 रहने दिया, 2 को 4 कर दिया, 1 को 5 कर दिया, 1 को 5 कर दिया। यही करना था आपने, SPSS ने आपको करके दे दिया है। सही है। तो अब आपके पास Q8 रिवर्स हो गया है। अब हम कन्वीनियंस के जो 3 सवालात हैं उनको समेटेड स्केल के अंदर जनरेट करते हैं। ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल, कन्वीनियंस, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन हम क्या टाइप करेंगे? ब्रैकेट ओपन, वी हैव Q7 प्लस, अब हम Q8 नहीं लेंगे, हम लेंगे Q8 R प्लस Q9, 3 questions, bracket close, divided by 3, and then press OK. So now we have computed the variable of convenience as well. Excellent. तो हमारे पास प्राइस हो गया, सर्विस हो गया, कन्वीनियंस हो गया। अब हमारे पास 2 रह गए हैं, स्टोर एनवायरमेंट और स्टोर स्विचिंग। Let's generate these 2 variables quickly. Transform, compute, store environment, bracket open. For the purpose of store environment, we have 10 and 11. So Q10 plus Q11, bracket close, divided by 2. Press OK. Store environment generate हो गया आपके पास। Similarly, transform, compute variable, store switching, bracket open, Q11. Oh, sorry, it's Q12, I think, right? Q12 plus Q13 plus Q14 plus Q15, bracket close, divided by 4.
सही है जी। तो ये आपके समेटेड स्केल्स जनरेट हो गए। आप चाहें तो ये एवरेजिंग एक्सेल में भी कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर एवरेज के फॉर्मूले से बहुत जल्दी हो जाता है, तो इतना कंप्यूटेशन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। मगर देन अगेन इट्स अप टू यू हाउ मच प्रेशर यू कैन टेक और हाउ मच यू आर कंफर्टेबल विद द सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हमारे पास प्राइस, सर्विस, कन्वीनियंस, स्टोर एनवायरनमेंट, स्टोर स्विचिंग, पांच वेरिएबल आपके पास, 1 2 3 4 5 वेरिएबल जनरेट हो गए। नाउ यू कैन यूज दीज वेरिएबल्स फॉर योर एनालिसिस। अच्छा, now once you have generated these values, what is the first thing that you have to perform? When you have generated these values, the first thing that you have to perform is the descriptives. Analyze, go to analyze, descriptives and descriptives. And in descriptives, you are going to select these new variables only. ठीक है, आप इनको select करेंगे। ऑप्शन में जाके आप रेंज, स्क्यूनेस, कर्टोसिस एंड देन प्रेस ओके। ऑप्शंस में जाके रेंज, स्क्यूनेस, कर्टोसिस को ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे, आपके पास ये पूरा टेबल बन जाएगा जिसमें रेंज आ जाएगी, मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस आएगा। ये बिल्कुल बिगिनिंग एनालिसिस है आपके समेटेड स्केल का। इसके अंदर आपको डिस्कस करना है कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एवरेज क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशंस वैल्यूज क्या है, स्क्यूनेस कितना है, कर्टोसिस कितना है। और इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए बेस्ट थिंग इज योर स्टैटिस्टिक्स बुक। आप अपनी नील वीज बहुत अच्छी किताब है। नील वीज बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज की इंटरप्रिटेशन देती है। आप नील वीज को खोलें, नील वीज, NEILWEISS, नील वीज को खोलें और नील वीज के अंदर आप रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस और कर्टोसिस, इन सब की इंटरप्रिटेशंस को पढ़ें और फिर आप इनकी इंटरप्रिटेशंस को अपने एंड के ऊपर आराम से रिसर्च में लिख सकते हैं। सही है, तो ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जनरेट होंगे। तो आपने रिलायबिलिटी टेस्ट कर ली, डेमोग्राफिक एनालिसिस कर लिया, समेटेड स्केल्स बना लिए, अब आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी जनरेट कर दिए। इंटरप्रिटेशंस के लिए शायद मुझे कोई अगला ट्रेनिंग सेशन करना पड़ेगा, कोई मेगा ट्रेनिंग सेशन होगा। मैं इस वक्त इंटरप्रिटेशंस डिस्कस नहीं कर सकती बिकॉज इट विल टेक होल 1 hour, but right now just to generate the table, I've explained this idea to you. ठीक है, अच्छा जी, last but not the least, last thing is the correlation. In order to correlate, you can go to analyze, correlate, bivariate, correlate, bivariate. bivariate पे आप जाएंगे और ये जो आपने वेरिएबल्स बनाए हैं, आप सिर्फ इन वेरिएबल्स को सेलेक्ट करके वेरिएबल के बॉक्स के अंदर डाल दें। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आप जैसे ही ओपन करेंगे, आपके पास एक कोरिलेशन का टेबल जनरेट होगा। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू ऑफ आउटपुट। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये आपके पास कोरिलेशन का टेबल है। इससे पहले जो डिस्क्रिप्टिव का टेबल बना था वो ये रहा। ये डिस्क्रिप्टिव का टेबल है जिसमें रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस है। इसके बाद आपके पास कोरिलेशन का टेबल है। ठीक है, ये कोरिलेशन का जो टेबल है ये आपका एक्चुअली रिलेशनशिप हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करता है। ये रिग्रेशन इम्पैक्ट के हाइपोथेसिस का आंसर नहीं है, ये कोरिलेशन है, सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप है। इम्पैक्ट चेक करने के लिए आपको रिग्रेशन पे आना पड़ेगा। ठीक है, मगर कोरिलेशन इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप टू चेक द इम्पैक्ट। अगर कोई चीज कोरिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो रिग्रेशन में भी नहीं जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब कोरिलेशन के टेबल को पढ़ने के लिए आपने क्या करना है? कोरिलेशन के इस टेबल को पढ़ने के लिए आपने अपने हाइपोथेसिस को देखना है। देखो, जब हमारे पास कोई रिसर्च के अंदर फ्रेमवर्क बना होता है, जैसे हम कहते हैं कि मुझे चेक करना है कि प्राइस का स्टोर स्विचिंग के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, तो इसका मतलब मैं प्राइस और स्टोर स्विचिंग की रिलेशनशिप को चेक करना चाहती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं प्राइस और स्टोर स्विचिंग की रिलेशनशिप को चेक करना चाहती हूँ तो आप इस कोरिलेशन के बॉक्स के अंदर एक ऐसा बॉक्स ढूंढें जिसमें प्राइस और स्टोर स्विचिंग की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया गया हो। सो इफ यू सी, दिस इज द राइट मोस्ट टॉप कॉर्नर पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक 0.565 की वैल्यू लिखी हुई आ रही है। इट इज एक्चुअली कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड स्टोर स्विचिंग। ठीक है, अच्छा, इस कोरिलेशन के अंदर आपने सबसे पहले सिग्निफिकेंस को चेक करना है कि ये सिग्निफिकेंस क्या है। अगर ये सिग्निफिकेंस की वैल्यू
0.05 से बड़ी है, 0.05 से बड़ी है, तो इसका मतलब कोरिलेशन के अंदर बहुत एरर है और हम इस कोरिलेशन को इनसिग्निफिकेंट कहेंगे। कोरिलेशन के अंदर एरर ज्यादा है, मैं ये नहीं कह रही कि कोरिलेशन नहीं है, एरर ज्यादा है। स्टैटिस्टिक्स कहता है कि 5% से ज्यादा एरर टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू 0.05 से बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि आपके कोरिलेशन के अंदर एरर है, ठीक है। मगर चूंकि ये वैल्यू इस वक्त आपके पास 0 है, इसका मतलब ये है कि आपका कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है, हम इस कोरिलेशन को एक्सेप्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसका कोरिलेशन क्या है, इसका कोरिलेशन है 0.565। नाउ सिंस देयर इज नो साइन, ना यहाँ पे प्लस लिखा है ना माइनस लिखा है, इसका मतलब ये कि जब कोई वैल्यू नहीं, साइन नहीं होता तो पॉजिटिव वैल्यू है। तो आपको ये पता चल गया कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी डिस्काउंटेड प्राइस या प्रोमोशनल प्राइसेस जितनी ज्यादा ऑफर की जाएंगी उतना ही ज्यादा स्टोर स्विचिंग बिहेवियर बढ़ेगा, ठीक है। जब कोई स्टोर ये चाहता है कि अपने पास कस्टमर्स को बुलाए तो वो प्राइस डिस्काउंट्स और प्रोमोशनल प्राइसिंग के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे। क्यों? क्योंकि वो स्टोर स्विचिंग बिहेवियर को सपोर्ट करता है, कोरिलेट करता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अब आप सर्विस और स्टोर स्विचिंग, कन्वीनियंस और स्टोर स्विचिंग, एनवायरनमेंट और स्टोर स्विचिंग के इंडिविजुअली हर कोरिलेशन को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैम आई हैव वन क्वेश्चन। यस प्लीज। मैम एक रिसर्च में हम लोग 3 कोरिलेशंस की टेबल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे 3 अगर डिफरेंट वेरिएबल्स हो तो 3 डिफरेंट कोरिलेशन टेबल्स निकाल सकते हैं हाँ इंटरप्रिटेशन के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 डिपेंडेंट वेरिएबल होते, स्टोर स्विचिंग होता और कस्टमर एटीट्यूड होता, तो मैं एक दफा स्टोर स्विचिंग के लिए बनाती, एक दफा कस्टमर एटीट्यूड के लिए बना लेती। अच्छा मैम, जैसे मेरी रिसर्च में 3 डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो मैं ठीक है, 3 बार कोरिलेशन निकाल सकता हूँ हर इंडिपेंडेंट हाँ को बिल्कुल, हाँ कंपेयर करने यस के लिए। यस यस यस। थैंक यू मैम। आई हैव अ क्वेश्चन। मैम अगर मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो लेकिन उसके 3 एलिमेंट्स हों, तो डिपेंडेंट, फॉर एग्जांपल ब्रांड इक्विटी मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके 3 एलिमेंट्स हैं, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड लॉयल्टी और ब्रांड एसोसिएशन। तो डिपेंडेंट तो मेरा एक ही हुआ ना, ब्रांड इक्विटी ही हुआ ना? बिल्कुल हाँ, एक ही हुआ। अच्छा देखो, तो इसके अंदर एक ऑप्शन है, आप क्या 3 डायमेंशन को अलग अलग ट्रीट करना चाहते हैं? अगर आप अलग अलग ट्रीट नहीं करते तो आप समेटेड स्केल में तमाम सवालात को एक साथ समेटेड कर दें। ओके मैम, अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं अगर, हाँ तो फिर समेटेड स्केल तीनों के अलग अलग बनेंगे। ठीक है मैम, ठीक है। और फिर वो तीन डिपेंडेंट ट्रीट होंगे, वो एक डिपेंडेंट ट्रीट नहीं होगा, फिर वो 3 डिपेंडेंट ट्रीट होंगे। लोग उसका इफेक्ट अलग अलग उस पे देखना चाहते हैं ना, एलिमेंट्स में। ब्रांड, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ब्रांड में क्या इफेक्ट आएगा, ब्रांड एसोसिएशन में क्या इफेक्ट आएगा, ब्रांड लॉयल्टी में, तो हम लोग उसको 3 अलग अलग। बिल्कुल हाँ। अगर देखो, अगेन वेरी गुड वे, बिकॉज अगर आप हाइपोथेसिस ऐसे डिफाइन कर रहे हो तो फिर आप समेटेड स्केल्स तीनों के साथ नहीं बनाओगे, अलग अलग बनाओगे, क्योंकि आपका हाइपोथेसिस डिफाइंड ऐसे हुआ हुआ है, ठीक है। अगर मेरा हाइपोथेसिस ब्रांड इक्विटी पे डिफाइन हुआ हुआ है तो फिर मैं सारे क्वेश्चंस को समेटेड स्केल करके एक वेरिएबल बना दूंगी। गॉट इट मैम। ओके ठीक है मैम, आप एक बार प्लीज, लास्ट क्वेश्चन, आप एक बार दोबारा बता सकती हैं कि ये 3 अलग अलग को ट्रीट करने के लिए हम किस तरह से समेटेड स्केल बनाएंगे? फॉर इंस्टेंस, अगर ब्रांड लॉयल्टी के 2 सवालात हैं तो आप सिर्फ उन 2 सवालों को कंबाइन करके ब्रांड लॉयल्टी का सवाल वेरिएबल बना देंगे। ब्रांड एसोसिएशन के 4 हैं तो आप 4 को कंबाइन कर देंगे। ब्रांड अवेयरनेस के 3 है तो 3 को कंबाइन कर देंगे। और अगर ब्रांड इक्विटी पूरा बनाना है तो 4 3 7 7 2 9 9 को एक साथ कंबाइन करके ब्रांड इक्विटी का पूरा एक बन जाएगा। ओके मैम, आई गॉट इट, थैंक यू सो मच। चलें जी, सो शुड वी एंड आवर सेशन हियर, एंड आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आ गया होगा। मैम लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने अभी एक कोरिलेशन निकाला है, हम आपको कह रहे हैं कि हम 3 कोरिलेशन के टेबल्स बनाना चाहते हैं, तो उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए हम लोग फिर किस चीज को रेफर करें? उमा सिकरान की बुक को रेफर करें कोरिलेशंस के लिए, डिस्क्रिप्टिव्स के लिए। लाइकवाइज रिग्रेशन भी 3 निकलेंगे, हर चीज 3 उससे निकलेगी हमारी। बिल्कुल हाँ हाँ, रिग्रेशन भी 3 होंगे, बिल्कुल ठीक है। मैम अनोवा टेबल का भी कुछ बता देंगे आप? अनोवा इज रिग्रेशन बेस्ड, एंड एज आई सेड कि मुझे रिग्रेशन के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि रिग्रेशन इटसेल्फ इतना हैवी है कि वो कम से कम आपका 1 से 1.5 घंटा लगा देगा। ओके मैम, ठीक है। सो राइट नाउ आई कैन नॉट गिव यू दैट टाइम।
ठीक है जी. So I hope that things are pretty clear now, and इंशाल्लाह अगर हुआ तो फिर मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेशन भी आप लोगों के लिए कर लूँगी, तो फिर उसमें हम फर्दर चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं. जो आपने सीखा है दैट्स अ ड्रॉप इन द ओशन ऑफ SPSS, एंड ऑल द बेस्ट विद योर वर्क. ठीक है जी.